नमस्कार बच्चों, आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन एंड application of adsorption. So let us see in quick about the application of adsorption. So we can say here application of adsorption are so many in our daily life, such as in the decolorization of sugar. In the decolorization of sugar, generally animal charcoal or the coal charcoal is also used to decolorize it. In heterogeneous catalysis, in many industrial processes, some metals are used and some other catalysts are used as a heterogeneous catalyst. In gas mass, in the chromatographic process, in paint industries, generally several solvents are used to adsorb the dissolved gases into it. In the adsorption indicators, generally silver nitrate is treated as or treated in the presence of eosin indicators with potassium bromide. In the petroleum refining, during the petroleum refining and vegetable oils, colloidal silica used which adsorb the impurities present into them. In drying the moisture of atmosphere, to make a dry atmosphere, generally silica gel spray is done. इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर के सॉफ्टनिंग वगैरह में भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. मैनी ऑफ द मेडिसिन आर यूज और टेकन इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सम कोलाइडल substances or colloids which are adsorbed into the body. Okay, so these are all about the application of adsorption. Now today our new topic is catalysis and catalyst, or we can say catalyst and catalysis. So first of all, catalysis was studied by the Berzelius in 1835. That is, in 1835 he studied different catalytic reactions. And let us see about the catalyst and catalysis. What is a catalyst? So we can say catalysts are those substances which alters the rate of any chemical reaction without being consumed in the reaction. Is it? Means we can say these are those substances, ऐसे substance है जो किसी chemical reaction की speed को, उसकी rate को affect करते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं बिना उस reaction में consume हुए, बिना उस reaction में खत्म हुए. और इस process को हम क्या कहते हैं? Catalysis कहते हैं. So this phenomena is called catalysis. For example, when potassium chlorate is treated with manganese dioxide powder, then it decomposed to give potassium chloride and oxygen along with the release of MnO2 as it is. Means here the powdered MnO2 is used as a catalyst. समझ में आया कि क्या बोला हमने यहाँ पर? Catalysis. Catalysis means the processes which are catalyzed by the catalyst. And what are the catalysts? Catalysts are those substances which alters a chemical reaction without being consumed into it or without being chemically and quantitatively changed after the reaction are known as catalyst. समझ में आया? So now let us see about the types of catalysis. So there are different types of catalysis we can study. Basically in our book NCERT, two types of catalysis are given, that is positive catalysis and negative catalysis. Here we will study about the four types of catalysis, as these are generally asked in the competition exam also. So let us see what is positive catalysis. Simply we can say when the rate of any chemical reaction increases due to presence of any catalyst in the reaction or any substance in the reaction, then such types of catalytic reactions are called positive catalytic reaction, and the catalyst used is called positive catalyst. For example, the above reaction, decomposition of potassium chlorate by the presence of MnO2. Here MnO2 is a positive catalyst. Is it clear? Then the next one is that is we can say negative catalysis. Negative catalysis simply here just opposite of positive catalysis, means if the presence of any substance reduces the rate of chemical reaction, then it is called negative catalysis, and this process is called negative catalysis. जनरली 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ था H2O2 इज अ
वेपोराइजेबल गैस और वी कैन से लिक्विड भी कह सकते हैं. सो H2O2 इज अ वेपोराइजेबल लिक्विड. आप जो देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लिक्विड आता है वो अगर ओपनली छोड़ दिया जाए तो आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O2 में टूट जाएगा. सो टू स्टॉप इट्स डिकम्पोजिशन जनरली आइदर यूरिया और phosphoric acids are added into it. So by addition of phosphoric acid we can reduce the rate of decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. Here the phosphoric acid is used as a negative catalyst. Then the third one is autocatalysis. Here autocatalysis means we can say we are not using any catalyst in the reaction, but when a product is formed, the product itself behave as a catalyst. That's why it is called autocatalysis. So sometimes one of the product formed in the reaction itself act as a catalyst called autocatalyst, and the reaction is called autocatalysis. For example, during the titration of oxalic acid with KMnO4 in presence of H2SO4, there is no catalyst present in the beginning of reaction, but once the reaction started and formation of MnSO4 takes place, so here the MnSO4 catalyze the reaction faster. Means the presence of MnSO4 is as a autocatalyst. Clear hai? Then the next one is induced catalysis. Induced catalysis means we can say due to the presence of any substances in the reaction mixture, if it catalyze the reaction, then we can say that substance induces the catalysis in that reaction. मतलब उसमें वो induce कर रहा है catalysis, प्रेरित कर रहा है वो reaction को catalyze होने के लिए. जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि when oxalic acid is titrated with the mercuric chloride solution, then there is no catalysis takes place. But when the same reaction is carried out in presence of acidic KMnO4, जैसे ऊपर की reaction में देख रहे हैं oxalic acid के साथ में, so that is going fast. Means here it is induced by the presence of KMnO4, so that is called induced catalytic reaction. समझ में आया? सो कैटेलिसिस में हम कह सकते हैं यहाँ पर बेसिकली ये हम 4 प्रकार का देखते हैं, लेकिन आपको जो NCERT बुक में है वो 2 प्रकार का देखना है, पॉजिटिव कैटेलिसिस एंड नेगेटिव कैटेलिसिस. पॉजिटिव कैटेलिसिस मीन्स वी कैन से जनरली विच कैटलाइज द रिएक्शन इन अ पॉजिटिव वे, उसको बढ़ाते हो जिसके प्रेजेंस के कारण, अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस के कारण रिएक्शन रेट बढ़ जाए तो पॉजिटिव कैटेलिसिस. अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस होने के कारण रिएक्शन रेट कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटेलिसिस. नाउ लेट अस सी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट. इज इट? कैटलिस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है. कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके प्रेजेंस होने के कारण रिएक्शन रेट अल्टर होती है. अल्टर कहने का मतलब है चेंज हो जाती है. वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी. दैट मीन्स वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है. सो वी कैन से कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग केमिकली चेंज्ड and quantitatively changed in the reaction. That means they remain as it is after the reaction. So let us see here some of the characteristics of catalyst. Catalyst only catalyze the rate of any chemical reaction. That means catalyst can catalyze the reaction without being changed by their mass, by their volume. मतलब हम जितना यूज़ करते हैं रिएक्शन के बाद में उतना ही मिल जाएगा, वहाँ पर कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलता है. सेकेंडली, एक बहुत छोटा सा अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज कर सकता है. सो वी कैन से अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. देन जनरली हम कहते हैं यहाँ पर कि कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन बट इट कैन ओनली अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. समझ में आ रहा है क्या बोला है? कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है, या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है. कैटलिस्ट का काम केवल क्या करना है? रिएक्शन रेट को अल्टर करना, उसको शुरू या खत्म कराना नहीं है. दूसरी चीज, कैटलिस्ट does not affect the equilibrium state. It only helps in attaining the equilibrium faster or soon. Means we can say कि कैटलिस्ट केवल इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेंड करने में हेल्प करता है. कहने का मतलब है कि अगर हमने कहा 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर है और हम इक्विलिब्रियम स्टेट 25 किलोमीटर कह दें, और यदि हम क्या कर रहे हैं, एक बाइक से जा रहे हैं और हमको वहाँ पर लगता है क्या 1 घंटा लगता है, तब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँचते, एकदम मिड में पहुँचते 25 किलोमीटर. लेकिन यदि हम एक कार ले रहे हैं और फास्ट कार लेते हैं, और मान लीजिए फास्ट कार क्या है, कैटलिस्ट है, तो वो केवल आपको 20 मिनट्स में पहुंचा देती है 25 किलोमीटर. सो वी कैन से
आप 25 किलोमीटर मतलब मीड में पहुँचे, इक्विलिब्रियम में पहुँचे, जल्दी पहुँचे, सो वो किसका काम है? कैटलिस्ट का। मीड तो हमेशा वहीं पर रहेगा, इक्विलिब्रियम तो उतनी ही दूरी पर रहेगा। तो यहाँ पर वही हमने कहा है कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इट हेल्प्स ओनली इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। सेकेंडली हम कहते हैं यहाँ पर, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी of catalyst. That means catalysts are highly specific in nature. Means a particular catalyst can catalyze a particular reaction, not all the reaction. एक catalyst एक particular type की reaction को ही catalyze करता है, सभी प्रकार की reaction को catalyze नहीं कर सकता है. And they are work at a particular temperature range, that is called optimum temperature range. So catalyst can shows their maximum efficiency between a particular temperature range. So that is called, they are optical टेम्परेचर शो करते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑप्टिकली होते हैं. देन कैटलिटिक एक्टिवेटर्स एंड प्रमोटर्स. सो वी कैन से सम ऑफ द कैटलिस्ट शोज देयर मैक्सिमम कैटलिटिक एक्टिविटी, मैक्सिमम एफिशिएंसी at in the presence of particular substances. They are called promoters, while certain substances are there which destroy and decrease the activity of catalyst are called एंटी कैटलिस्ट. उनको क्या कहा जाता है? एंटी कैटलिस्ट वगैरह हम कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए इन द हैबर प्रोसेस, in the preparation of ammonia, iron is used as a catalyst while the molybdenum used as a promoter. That means the presence of molybdenum activates the catalytic power of iron, is it? So they are called, क्या कहा जाएगा उनको? एक्टिवेटर्स कहा जाता है या प्रोमोटर्स हम कहते हैं. दूसरे जो कैटलिटिक रिएक्शन को रोक देते हैं, उनकी जो स्पीड है या हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, उनको कैटलिटिक पॉइजन या एंटी कैटलिस्ट वगैरह भी कहते हैं. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट. मीन्स अगर कैटलिस्ट होगा तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, या कैटलिस्ट नहीं होगा तब भी अगर रिएक्शन हो रही है तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा. कैटलिस्ट प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा, कैटलिस्ट केवल रिएक्शन को फास्ट करा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जल्दी बन जाएंगे, इतना कर सकता है. दैट मीन्स द प्रेजेंस or absence of catalyst does not change the nature of product formed during a reaction. Next one हम कहते हैं the important one, that is catalyst decreases the activation energy. क्या कहा जाता है? Catalyst decreases the activation energy. We know about the activation energy. Activation energy is actually the additional amount of energy that all the reactant molecules require to convert into product after crossing the एनर्जी बैरियर. मीन्स उनको एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए, वो क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी. समझने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे आपका पासिंग मार्क्स होता है 33%. कितना होता है? 33% इन ईच सब्जेक्ट. सपोज आपको वहाँ पर 20 मार्क्स ही आए हैं, दैट मीन्स इट इज़ योर एक्चुअल मार्क्स. 20 मार्क्स इज योर एक्चुअल मार्क्स. नाउ यू नीड 13 मार्क्स एडिशनल, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. मतलब हमको अलग से, जैसे ग्रेस देते हैं ना, कभी कभी ग्रेस दिया जाता है, तो वो हम कहते हैं क्या, यहाँ पर आपका 13 मार्क्स क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. यदि कोई ऐसा रूल ला दिया जाए कि आपको 13 मार्क्स ना लाकर 25 पे ही पास करना है, और आपको कितने मिले यहाँ पर? 20 मार्क्स. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी गई, और वो कौन करता है? कैटलिस्ट करता है. सो यू कैन से द कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट. इट मीन्स दैट द डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. समझ में आया? So these are the important characteristics और property of catalyst. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है इनको समझना. नेक्स्ट वन हम यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज अबाउट द होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फेसेस प्रेजेंट इनटू, मतलब फिजिकल फेस के बेस पर जो सब्सटेंसेस होंगे किसी कैटलिटिक रिएक्शन में, वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. सो लेट अस सी फर्स्ट here about catalysis. हम कैटलिसिस की बात कर रहे थे. हमने यहाँ पर देखा कैटलिसिस क्या है, ये पढ़ा प्रोमोटर्स और पॉइजन. अभी हमने कहा था पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, और उसके बाद हमने कहा प्रोमोटर्स. सो लेट अस सी हियर द डेफिनेशन. प्रोमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. मतलब जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रोमोटर्स. जैसे आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं, N2 + H2 गिव राइज टू NH3 in the presence of iron and molybdenum. So here molybdenum is act as a promoter. वो आयरन की कैटलिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है. पॉइजन हमने कहा था जो कैटलिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो जो कैटलिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं वो क्या कहलाएंगे? पॉइजन वगैरह कहलाते हैं. ठीक, जैसे H3PO3 ऐड किया था, वहाँ पर हमने किया था, कहाँ पर? ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ
H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन में हमने क्या यूज़ किया था? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इज अ कैटलिस्ट। अगर वहाँ पर कोई मेटल सब्सटेंसेस होगा तो वो क्या करेगा, उसको और फास्ट करा देगा उस रिएक्शन को, तो वो क्या करेगा, कैटलिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करा देगा। सो दैट आर कॉल्ड कैटलिटिक पॉइजन। नाउ लेट अस सी अबाउट द टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. So catalysis can be broadly divided into two groups, homogeneous and heterogeneous. The name you already studied about the homogeneous. homo मतलब सेम, जीनस मतलब स्पीसीज, मतलब ऐसी कैटलिटिक रिएक्शन जहाँ पर सारे फिजिकल स्टेट जो होंगे रिएक्टेंट के वो सेम होंगे, तो उसको क्या कहा जा सकता है, होमोजेनस. हेट्रो का मतलब होगा अलग अलग. सो लेट अस सी अबाउट होमोजेनस कैटालिसिस. सो हियर homogeneous catalysis means we can say when the reactant and catalyst are in the same physical state, either in the liquid, solid or gaseous phase, the process is said to be homogeneous catalysis. समझ में आ रहा है सिंपल सा क्या कहा जा रहा है? when reactants and catalysts both are present in the same physical state forming a homogeneous mixture, then it is called homogeneous catalysis. क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, when sulfur dioxide gas is converted into sulfur trioxide during the formation of H2SO4 in the presence of nitric oxide. Here the nitric oxide is actually a catalyst. Is it? Same when the methyl acetate is hydrolyzed with water, then it will give rise to the acetic acid and methanol that in the presence of HCl. So both the reactions आप देख सकते हैं यहाँ पर, in the first reaction all the reactants are in the gaseous form as well as the catalyst is also there, while in the second reaction all three are in the liquid state. So that process is called क्या कहा जाएगा, homogeneous catalysis. क्लियर है? इसके पीछे थ्योरी भी पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ हमें इसमें थ्योरी भी आती है. व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द होमोजेनस कैटालिसिस? सो लेट अस सी हियर एग्जांपल. आपने देखा, क्या देखा, SO2O2 गिव राइज टू SO3. वाइल हमने जो रिएक्शन देखे थे पोटेशियम क्लोराइड की MnO2 के साथ में, पोटेशियम क्लोराइड इज इन द सॉलिड फॉर्म, MnO2 पाउडर इज टेकन, दैट इज ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म. दैट रिएक्शन इज ऑल्सो homogeneous catalysis. Now let us see the theory behind homogeneous catalysis. The theory behind homogeneous catalysis is known as intermediate compound formation theory. यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देना कि क्या है intermediate compound formation theory. According to this theory, ध्यान दीजिए, according to this theory, catalyst first combine with any one of the reactant and form a intermediate complex or compound. क्या बोला है कि सबसे पहले कैटलिस्ट कोई एक रिएक्टेंट, अगर एक से ज़्यादा वहाँ पर रिएक्टेंट है रिएक्शन में, तो वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ में कंबाइंड होकर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा. ये जो बना हुआ कंपाउंड है दैट विल रिएक्ट विद द अनदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट एंड रिलीज द कैटलिस्ट अगेन. ठीक, कि जो बना है इंटरमीडिएट कंपाउंड वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ में कंबाइंड होकर क्या करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा और कैटलिस्ट फिर अलग हो जाएगा. दैट मीन्स नाउ कैटलिस्ट इज रेडी फॉर द अनदर अटैक. Is it? For example, in the first reaction, let us see when SO2 is converted into SO3 in the presence of nitric oxide, as nitric oxide is catalyst here. So see here, in case of oxygen, when react with the nitrogen dioxide, two molecules of nitrogen oxide react, it form 2NO2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ दिस फॉर्म्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड गैस दैट फॉर्म SO3 and again the nitric oxide is released. यहाँ आप बैलेंसिंग के लिए 2 कर सकते हैं, 2SO3 and 2NO. तो आप देखेंगे जैसे कि वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पर निकल चुका है. दैट मीन्स व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म्स अ इंटरमीडिएट कंपाउंड NO2. This intermediate compound NO2 react with the sulfur dioxide to release the product SO3 sulfur trioxide along with the release of nitric oxide as a catalyst. समझ में आया? So that is called theory of homogeneous catalysis. Next one is heterogeneous catalysis. क्या कहा जा रहा है? Hetero. As the name indicate, hetero means क्या कहा जाएगा? अलग अलग होना, different. So in case of heterogeneous catalysis, we can say when the reactants and catalysts both are present in the different physical state, then such reactions are called heterogeneous catalysis. Is it clear? कि जब reactant और कैटलिस्ट, प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, क्या कहा जा रहा है, इनिशियली ओनली रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर प्रेजेंट. सो व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट, देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड
हेट्रोजिनस कैटालिसिस। एग्जाम्पल के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ NH3 फॉर्मेशन ड्यूरिंग Haber process we are using iron as a catalyst in the solid form, while nitrogen and hydrogen both are gases. That means they are different states. Gas and solids, two different states are there, so that is called heterogeneous catalysis. Clear है? और another example देखिए यहाँ पर in the manufacture of sulfuric acid by contact process. So जब contact process से हम sulfuric acid बनाते हैं using the sulfur dioxide gas, then आप यहाँ पर देख सकते हैं platinum catalysis use. क्या use किया जाता है? To convert SO2 into SO3, platinum catalysis used. Then SO3 is hydrolyzed with the water. So here gas and solid catalysts are used. So this is also a heterogeneous catalytic reaction. While in the formation of vegetable ghee, oil is in the liquid form, H2 is in the gaseous form, while nickel catalyst used, which is in the solid form. So here the states are different, so we can say this is heterogeneous catalytic reaction. Clear है? इतना समझ में आ रहा है? बात करते हैं थ्योरी बिहाइंड द हेट्रोजिनस कैटालिसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरली ये एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज होमोजेनस एंड हेट्रोजिनस कैटालिसिस, राइट डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजिनस कैटालिसिस, राइट नोट्स ऑन आइदर होमोजेनस और हेट्रोजिनस कैटालिसिस विद सूटेबल एग्जाम्पल, या आइडेंटिफाई करने के लिए आता है किस टाइप की कैटालिटिक रिएक्शन है। उसके अलावा आता है एक्सप्लेन मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर हेट्रोजिनस कैटालिसिस। तो आपको याद रखना है होमोजेनस कैटालिसिस के लिए क्या था वहाँ पर, दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। हेट्रोजिनस कैटालिसिस के लिए क्या है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। सो आप इसे सिंपली समझिए, इन केस ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जनरली क्या कहा जाएगा, हमने देखा है एडजॉर्प्शन इज बेस्ड ऑन the temporary bonding between the adsorbate and adsorbent molecules. So let us see here, according to this theory there are certain free valencies are present on the surface of solid catalyst which is capable of forming loose or temporary bond with the reactant molecules. Clear है? क्या बोला हमने यहाँ पर कि solid catalyst के surface पर कुछ रेसिडुअल वैलेंसीज होती है, फ्री वैलेंसीज होती है जो अनसेटिस्फाइड होती है, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर टेम्पररी बॉन्ड कर सकते हैं या उनको होल्ड कर सकते हैं। नाउ बट कैटालिटिक सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा समय तक नहीं होती। दैट मीन्स वी कैन से कैटलिस्ट फॉर्म एन इंटरमीडिएट विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इज इट डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस ड्यू टू लैक ऑफ इट्स एफिनिटी फॉर कैटलिटिक सरफेस। मतलब जो कैटलिटिक सरफेस पर बॉन्डिंग हुई है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में वो बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं है, उसकी एफिनिटी बहुत कम है, उसकी क्षमता काफ़ी कम है। इसीलिए क्या होगा, कैटलिस्ट बहुत जल्दी से रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसे अलग कर देगा और अगेन वी आर गेटिंग द कैटलिस्ट, इज इट। सो दैट थ्योरी इज कॉल्ड हेट्रोजिनस कैटालिसिस। लेट अस सी हियर इन स्लाइड वी कैन अंडरस्टैंड मोर इजिली एज, ये हमने कहा था अभी adsorption theory of heterogeneous catalysis, that is modern adsorption theory of heterogeneous catalysis. So let us see about modern adsorption theory. हमने क्या कहा था यहाँ पर कि कैटलिस्ट कंबाइंड होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी से मिलकर क्या बनी है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि कुछ रेसिडुअल वैलेंसीज होती है कहाँ पर, कैटलिस्ट वगैरह के सरफेस पर, एडजॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर एंड इट विल फॉर्म द टेम्पररी बॉन्ड, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। क्लियर है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स, फिर वो क्या करेगा, डिजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड thereby making the surface available again for the more reaction to occur। मतलब बार बार कैटलिस्ट फ्री हो जाएगा और वो अगले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैटलाइज करते जाएगा और इस प्रकार से रिएक्शन कैटलाइज होगी और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी बिकॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस एंड कैटलिस्ट इज अगेन रेडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या कहा जाएगा, और रेडी फॉर द न्यू अटैक। ये देखिए यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं, दिस इज द कैटालिटिक सरफेस, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ये जो रेसिडुअल वैलेंसीज है बॉन्डिंग अनसेटिस्फाइड है, when the reacting molecules A and B are present into it, that is AB molecules are when comes in contact with the catalytic surface they form a adsorption complex, that is catalyst के साथ में AB जुड़ चुके हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए AB जुड़ चुके हैं, this adsorption of reacting molecules मिलकर क्या बना रहे हैं, एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नीचे देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट, राइट हैंड साइड नीचे
it forms a intermediate compound where AB are reacted with the catalyst or reacted on the catalytic surface, then desorption of product हो रहा है वहाँ पर, पहले A और B अलग अलग थे, अब मिलकर AB प्रोडक्ट बनाए and catalyst is again released for the new attack, is it? So that is the modern adsorption theory. ये क्या है? modern adsorption theory है. clear हुआ कि what is modern adsorption theory? Then let us see important features of solid catalyst, मतलब हम यहाँ पर कहेंगे केवल और केवल किसके लिए? heterogeneous catalytic reaction के लिए, is it? As most of the industrial process are taken place in heterogeneous catalytic form. So let us see the specific features of heterogeneous catalysis और heterogeneous catalytic reaction. ठीक है, तो यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कैटलिस्ट के, सॉलिड कैटलिस्ट या हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के. एक हम कहते हैं एक्टिविटी और दूसरा हम कहते हैं यहाँ पर सिलेक्टिविटी. क्या कहा जाता है? ये जनरली पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी. सो लेट अस सी अबाउट एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. फर्स्ट इज एक्टिविटी. सिंपल समझिए, एक्टिविटी का मतलब है उसका पावर ऑफ ऑल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, पावर ऑफ चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से अल्टर कर सकता है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ में केमिजॉर्प्शन करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी एक्टिविटी. सिंपली वी कैन से बाय द एक्टिविटी इट मीन दैट द कैपेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज टू 10 to the power 10 टाइम्स. मीन्स वो कितने गुना तक बढ़ा सकता है कैटलिस्ट? अगर कैटलिस्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन चलेगी नॉर्मल स्पीड से, लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन 10 to the power 10 टाइम्स, मतलब कई मिलियन टाइम्स बढ़ जा रही है. क्लियर है? इतनी फास्ट हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन. सो दैट इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज प्लेटिनम वगैरह के प्रेजेंस में अगर होगा तो होगी. क्या बोला है? जनरली वाटर का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है. हम नेचर में देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नेचर में गैसेस प्रेजेंट है, बट देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन अवर रूम. बट व्हेन द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड एट अ पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, द रिएक्शन इज वेरी फास्ट. वो कई गुना बढ़ जाती है, बहुत रैपिड स्पीड से होती है. हम कहेंगे इट टेक्स प्लेस रैपिडली. समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. एंड द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज बेसिकली डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन. द लार्ज एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन. कि केमिजॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी आसानी से उस पर कैटलिटिक सरफेस मिलेगा उसको. जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस मिलेगा कैटलिटिक सरफेस, जितने आसानी से एडजॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के सरफेस पर, उसकी एक्टिविटी उतनी ही अधिक होती है. समझ में आ रहा? सो द फर्स्ट वन इज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. सेकेंड वन इज सिलेक्टिविटी. सिलेक्टिविटी का मतलब है यहाँ पर कि कैटलिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव. कहने का मतलब है कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन. दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ कैटलाइज टू फॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. अगर हमने कैटलिस्ट चेंज किया तो हो सकता है वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट भी चेंज होगा. हमने शुरू में कहा था, यहाँ पर ध्यान देना, हमने कहा था कि कैटलिस्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता है, बोला था. लेकिन यहाँ ध्यान देना, हम एक स्पेसिफिक उसके नेचर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी. दैट मीन्स अ पर्टिकुलर कैटलिस्ट हैज़ इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मीन्स उस कैटलिस्ट में ये कैपेसिटी है कि वो क्या प्रोडक्ट बनाना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. लेट अस सी in the reaction, when the reaction is carried out between carbon monoxide and hydrogen, it is carried out in presence of nickel, then that form methane. क्या बनाता है वो? मीथेन एज अ प्रोडक्ट एंड वाटर. समझ में आ रहा है? पहली रिएक्शन देखिए यहाँ पर कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मीथेन. जबकि सेम रिएक्शन व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर and ZNO and chromic oxide, then the product get changed. That means it is selectively formed. Catalyst change हुआ तो उसका क्या हुआ? वहाँ पर प्रोडक्ट भी चेंज हो गया, that is methanol. Is it? Then if the same reaction is carried out between the carbon monoxide and hydrogen, then it form methanol in presence of copper. किसके प्रेजेंस में? कॉपर के प्रेजेंस में क्या बना रहा है? वहाँ पर मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक, यानी वहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है. सो द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैन select the product form, that is called selectivity. क्या कहा जाता है इसी को? selectivity हम कहते हैं. इतना समझ में आया? ये क्लियर हुआ? so this is called the specific property of catalyst. क्या कहा जाता है इनको? specific property of catalyst. let us see यहाँ पर और एक और एग्जांपल देखते हैं. selectivity में हमें कहा था catalyst are highly selective.
इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू फॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब वो उनकी कैपेसिटी होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट देंगे। कॉपर के प्रेजेंस में आपने देखा मिथेनॉल बना, कॉपर और ZNO और Cr2O3 के प्रेजेंस में मिथेनॉल बना, वाइल इन प्रेजेंस ऑफ निकल इट फॉर्म द मीथेन। सेम यहाँ आपने पढ़ा हुआ है 11th में कि जब अगर हम इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH का हाइड्रोजनेशन कराते, इफ इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकल एटसेट्रा, देन देर इज कंप्लीट हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस एंड इट फॉर्म इथेन। वहाँ पर क्या होगा, दो H2 के मॉलिक्यूल जुड़कर क्या बन जाएंगे, CH3 बनेंगे। लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन, देन क्या बनाता है वो, इथिलीन का फॉर्मेशन करेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर डिफरेंसेस कि दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनना है। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। दिस आर द टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, टू स्पेशल फीचर्स ऑफ हेट्रोजेनस कैटलिटिक रिएक्शन और हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। ठीक, फिर इसके बाद आप देखते हैं एक important topic, shape selective catalysis by zeolite, as we already studied about the zeolite in 11th standard। क्लियर है? 11th क्लास में आपने p ब्लॉक एलिमेंट्स में जियोलाइट के बारे में पढ़ा था। वी नो दैट जियोलाइट हैव देयर स्पेसिफिक पोरस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जनरली जियोलाइट वगैरह का यूज़ हम करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, जैसे पेट्रोलियम वगैरह बनाने के लिए, पेट्रोल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए ZSM5 जियोलाइट का यूज़ किया जाता है। सो लेट अस सी व्हाट इज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली 1 मार्क्स में पूछता है व्हाट इज शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस, डिफाइन शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। क्लियर है यहाँ पर? सो जनरली जियोलाइट्स एक्ट एज अ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज देयर कैटलिटिक एक्टिविटीज आर डिपेंड ऑन देयर स्पेसिफिक शेप, कि उनके पोरस स्ट्रक्चर पर, एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करती है। सो हमने कहा है द कैटलिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोरस स्ट्रक्चर, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट और किसके, कैटलिस्ट के शेप के ऊपर डिपेंड करता है, उनके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा जो कैटलिसिस, उसको क्या कहा जाएगा, शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस। वर्ड पर जाइए उसके, शेप सिलेक्टिव मीन्स the catalytic reaction of any catalyst is depending on the porous structure of catalyst as well as on the size of reactant and product molecules, is it? So that is called shape selective catalyst. Generally zeolites are good shape selective catalyst because their honeycomb like structures, honeycomb like structure मतलब मधुमक्खी के छाते के जैसा, अभी हम देखेंगे आगे। they are microporous aluminous silicates, हमने पढ़ चुके इनका कंपोजिशन, they are aluminous silicates molecules। ठीक, सिलिकेट्स के क्या होते हैं, ये एक प्रकार के सिलिकेट्स हैं जियोलाइट्स। So they are aluminum silicates with three-dimensional network of silicates in which some of the silicon atoms are replaced by aluminum atom, giving aluminum silicates framework, ALOSI framework. The reaction taking place in zeolites depend upon the size and shape of reactants and product molecules as well as upon the porous and क्या कहा जाएगा, कैविटी ऑफ जियोलाइट, मतलब उनके कुल मिलाकर हम कहेंगे शेप के ऊपर डिपेंड करती है एक्टिविटी, इज इट? सो generally zeolites are having the porous structure and ZSM5 is generally used as a shape selective catalyst during the formation of gasoline from petroleum। यहाँ पर देखिए ZSM5, ठीक, it converts alcohol directly into gasoline, पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है किसको, एल्कोहल को, by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon। समझ में आ रहा? So here ZSM5 is act as a shape selective catalyst। यहाँ आप डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। ठीक, ये देखिए जियोलाइट का स्ट्रक्चर, जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ये भी बोला था। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मधुमक्खी के छाते के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है मधुमक्खी के छाते के जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये रेड कलर वाला, और वो क्या देखेंगे, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को अपने स्ट्रक्चर्स में क्या करेगा, अटैच करेगा, और उसकी एक्टिविटी इसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स के, पोरस स्ट्रक्चर्स के कारण होती है, उसकी इसी ज्योमेट्री के कारण एक्टिविटी होती है। ठीक, एंड ये सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक्चुअली द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, पोरस स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। क्लियर है यहाँ पर, इतना समझ में आया? सो क्या कहा जा रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द कैटलिसिस। तो आज हमने क्या देखा, अबाउट कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस, टाइप्स ऑफ कैटलिसिस।
ठीक है, दो प्रकार के टाइप्स देखे यहाँ पर। फर्स्ट वन हमने उनके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने के बेस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिसिस के बारे में देखा। सेकेंडली हमने उनके फिजिकल स्टेट के बेस पर कैटलिटिक रिएक्शन को देखा, दैट इज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटलिसिस, जिसमें हमने होमोजेनस कैटलिसिस के लिए जो थ्योरी थी दैट इज क्या था वहाँ पर, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी को पढ़ा। इन केस ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिटिक रिएक्शन वी स्टडी अबाउट द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक, ये दो पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या देखा यहाँ पर, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, एंड लास्टली वी स्टडीड अबाउट द शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। क्लियर है, ये समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस देखिए, इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखिए। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, इनको देख लीजिए। व्हाट इज कैटलिस्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट एंड होमोजेनस कैटलिसिस, एक्सप्लेन हेटेरोजेनस homogeneous catalyst with suitable example, explain positive and negative catalysis with example, what do you mean by induced and autocatalysis, why is finally divided, catalysts are more effective than those in solid state। ये क्वेश्चन आता है भी ज़्यादातर, ठीक, 1 मार्क्स में। अब सीधा सा आप उसका आंसर लिख सकते हो, क्यों होगा फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट ज़्यादा इफेक्टिव, बिकॉज when a catalyst is in the powder form, finally divided form, its surface area is increased, and we know that affectors surface area affect the catalytic activity। ये था ना कि कैटलिस्ट की कैटलिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। जब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा मोर सरफेस एरिया होने के कारण, तो कैटलिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सो यू कैन से इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिसिस इंक्रीजेस, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर कैटलाइज द रिएक्शन, दैट्स वाई इट इज़ मोर इफेक्टिव देन द सॉलिड स्टेट। फिर एक्सप्लेन द इंटरमीडिएट थ्योरी ऑफ कैटलिसिस था वहाँ पर, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, और उसके बाद आपने देखा एड्जॉर्प्शन थ्योरी वगैरह और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। इज इट? सो ऑल अबाउट द कैटलिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम कैटलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो फिर हमें बताइए। ओके, बाय।